Hello everyone, welcome back to another interaction with another topper of this year's Civil Services. With us is Mr. Rajiv. To introduce him, I would say that someone who has been a SBI PO, to that of a youth officer, to that of a Naib Tehsildar, to that of a IRS officer, and today with a rank good enough to click IPS this year. With us is Rajiv. Rajiv, welcome. Thank you, sir. And most importantly, Rajiv has been a General Studies Foundation batch student of Vajram. So, Rajiv, what we all want from you is how student can learn what you have done is what to learn from your experience. Yes, sir. Sir, coming to foundation course, I joined it in 2018-19 batch, and course was like designed to get completed in 10 months, and teachers were very professional in most of the courses and the classes. However, the problems which I faced during my foundation course was that I was not preparing enough at my home after taking the class. So 2-3 things are important when we are taking a foundation course for the first time. First thing is that when you are opting for a foundation course, try to complete NCERT before attending the foundation course. Even if you are not doing that, when you come to the class, you are already knowing the topic which will be discussed in the classes or what kind of topic the subject will be taught. Try to cover that enough portion, only that particular portion from the NCERT. Yes, before coming to the classes, and you will be understanding the classes better. Second thing, leave the margins on the pages, and immediately after going at the home, after taking some rest or like break, whatever you are eating, after that, glance through that particular day's lecture notes, and after that important things come, sir. First thing is get the previous year questions from the same topic. I did not do any of this thing. That's why I took 5 attempts or 4 attempts. But I'm like, if I would have done this thing, I could have have been better in the initial attempts itself. So after reading your cursory reading to your notes at that day, try to understand whatever you are not understanding through any online support available or through mentorship or searching through the web, YouTube, etc. And after that, take the questions which have come from the prelims and the mains examination from that particular topic itself, and try to understand and answer those questions from those particular notes, and whatever is not covered in those notes from those topics, try to fill that gap that day itself. So because if you are leaving that thing to the another day, that day doesn't come ever, sir. Or either it comes you are not able to face your mains examination after prelims, because you have to cover so much, and there you have to give a lot of time to revisions, also test writing. So it is not possible to make consolidated notes at one place. So if you go through this, you will be able to better understand and relate the topic with the PYQs, and that will be the key to the success, I say. इट्स द PYQs. एक PYQs तो देखना ही देखना है. Yes, sir. कि उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं. Yes, sir. एक आपका क्लास नोट्स हो गया, जो आपने पढ़ाई की है. Yes, sir. दूसरा हो गया उसको कंसोलिडेट करना. Yes, sir. कि इंटरनेट से हो या मेंटोर्स के थ्रू हो या सर मतलब ये क्लास करने के बाद में आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद आप PYQ देख लीजिए. जो क्लास नोट समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्लास कोचिंग से आपको अगर ऑनलाइन असिस्टेंस मिल रही है, मेंटर से मिल रही है, उनसे पूछ के या देख के कर लीजिए. नहीं हो रहा है तो वेब से करके सेम डे उसको इम्प्रूव करिए. उसके बाद में सेम टॉपिक के सर PYQ प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के, उनको ट्राई करिए आंसर करने का. इवन मेंस का अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो ट्राई टू फ्रेम की इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप उसको आंसर कर पाएंगे कि नहीं. मेंटल मैपिंग, if you are not able to find that content for that question, try to find the answer for that question from the net or like a solved book, PYQ solved question book, and try to incorporate that particular that part of topic which may not be in their notes. Write that there only, that particular topic, sir. मतलब ओवरऑल आपको आना चाहिए जो आपने पढ़ा है. जी सर. आप चाहे उसको किसी भी सोर्स से कवर कीजिए, आपको आना चाहिए. वैसे जब आपकी क्लासेस यहाँ चल रही थी और जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सारी चीजें तब नहीं की, जी सर, अब समझ में आ रहा है. जी सर. तो इन दी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो जो क्लास नोट्स आपने बनाए थे वो कितने काम आए? सर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम के थे, एंड मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में वही पढ़े. मैंने मार्जिन्स भी छोड़े थे, तो माई फॉर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट सर
मैंने उन्हीं पे मार्जिन्स पे जो भी मैं पढ़ रहा था, बाद में वैल्यू एडिशन वगैरह था जो किया वो वहीं पे किया। उसके बाद सर वो कोचिंग के नोट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। आफ्टर दैट सर मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में कोई नोट्स नहीं बनाए थे, उसको हाईलाइट किया था। उसके बाद में सर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किए, तो उसके बाद सर मैं उनको यूज कर रहा था। और जो वैल्यू एडिशन सर आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी क्लास लीजिए, क्योंकि थिंग्स आर नॉट लाइक दे आर वेरी डायनामिक। इवन topics can be same, the pattern of the question is changing, so you can even write the question, what kind of question they are asking from that topic, particular topic. So that helps sir in long term. अच्छा राजीव, when we say कि ये एग्जाम ऐसा है कि जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ करनी होती है, ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स पहले कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मेंस के बारे में सोचेंगे, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? सर मैंने दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड ही की। ज़्यादातर फाउंडेशन कोर्सेज जहाँ भी होते हैं वो इंटीग्रेटेड ही होते हैं। दोनों में सर मुझे लगता है कि जो दोनों एग्जाम्स हैं सर, उसमें हम प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल साइड पे होता है, लेकिन जो हमारी मेंस की अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक को लेके, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली फैक्चुअल। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच वी नो फॉर इवन द लाइक हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स ऑन द इकोनॉमी, that concept can be used in the prelims examination also. Absolutely. We have to like mug up the factual question, that is a separate thing. But if you are integrating your mains and prelims like preparation, sir, it will be very beneficial for the like you have to minimize your notes, you can have better understanding of the topics, and most important thing is you have to be mains ready before your prelims. Yes. Otherwise it becomes very difficult to cover the syllabus after clearing the prelims examination. 2.5-3 महीने उसमें तो क्या ही हो पाएगा? Yes sir, it is very difficult for the first timer at least. Yes. अच्छा, जो ये हम प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आंसर राइटिंग का आपने कैसा किया नहीं किया? Yes sir. सर प्री के लिए मैंने मार्केट से टेस्ट सीरीज लिए एंड मैंने उनको घर पे सॉल्व किया। और सर सबसे पहले तो मैंने जो कट ऑफ जा रहे थे मेरे 2 प्रीलिम्स फेलियर के बाद में, सर पहले 2 में जब मेरे प्रीलिम्स फेल हुए, मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे टेस्ट ही लगाना है, मैं पढ़ इनफ चुका हूँ। फिर उसके बाद सर मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, उसके बाद मैं सेक्शनल टेस्ट लगाता था, उसके बाद उनके सॉल्यूशन सेम डे पढ़ता था सर, जिस दिन टेस्ट लगाया है। एंड अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको मैं सर ये आईपैड पे करता था और स्क्रीनशॉट ले लेता था जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे। उसके बाद मैं एक और रिवीजन में सर कुछ करके स्क्रीनशॉट डिलीट कर देता था, और एग्जाम से 1 महीने पहले सर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था कुछ डिलीट करने के बाद में। तो ये सर मेरा प्रीलिम्स का रहता था। इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने किया, सर मैंने अपना जो मैं नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट कर रहा था उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया कि मेरा पैटर्न क्या आ रहा है। कहाँ पे गलत हो रहा है? मेरा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग मुझे 30% नेगेटिव मार्किंग आ रही थी। तो सर 60% मैं कोई भी क्वेश्चन लगा रहा था, अराउंड 30% सर नेगेटिव आ रहा था। तो आई came to a optimum number of questions which I have to attempt, like 85 to 90. And there was one more thing which I got from that analysis, and that was very personal to me. Thing was कि जब भी पेपर टफ आ रहा था तो मेरे नेगेटिव अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो जा रहे थे। तो जब मैंने उनको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो इट वॉज वर्किंग फॉर मी, दैट क्वेश्चन विच वर नॉट आई वॉज नॉट नोइंग बट दे वर गेटिंग करेक्टेड, वो ऑफसेट कर दे रहे थे और उससे मुझे फ़ायदा हो रहा था। तो ये मैंने सर बहुत सारे टेस्ट के बाद एनालाइज किया कि मुझे 90 क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज वेरी पर्सनल टू मी, आई थिंक दैट नंबर may differ for everybody. Person to person, yes. And whenever paper is sir simpler, paper was simple compared to like other papers, then I used to stick to 85 questions. And whenever paper seemed difficult to me, I enhanced the number of questions in the actual examination, although 95, and even last year I also attempted all the 100 questions. I did not leave with a single question. You attempted all? Yes sir. When I saw the question paper, I knew sir the paper is very difficult, and it was a most than preparation, it was the test of like your mindset at the time, the confidence and calm you are able to hold in the examination. Absolutely. Yes sir. So you have to trust yourself during the preparation and during the exam. That is the most important thing, especially on the day of prelims itself. Because we actually cut off are going sir like for like last 1 year less than 100. So a sincere candidate prepares more than that if he is taking test and taking the revisions. But when we see difficult papers like sometimes maybe case like कि आपने पेपर खोला और जो टॉपिक आपका सबसे वीक है वही पहले पेज पे है,
तो सर डर लगाता है, कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। तो सर कभी कभी सिंपलर क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए सर मैंने दूसरे अटेम्प्ट के बाद क्या किया, मैंने अपना पैटर्न सेट कर लिया पहले से ही कि जो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आती है, लाइक पॉलिटी, सर एग्जाम में पता नहीं चलता गलत है सही है, तो वहां तो पहले पॉलिटी करना है, कॉन्फिडेंस आएगा ही, सारे गलत हो जाए भले ही। तो पहले पॉलिटी करता था, इकोनॉमिक्स करता था सर, एनवायरमेंट करता था। ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स भी हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही है। मेजॉरिटी नंबर ऑफ पोर्शन भी क्वेश्चन पेपर का वही है, मेजॉरिटी यही है। दूसरा सर क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं आते, तो एनालिटिकल में सेम टॉपिक से आप कवर कर सकते हो। एब्सोल्युटली। और ये सर फिर मॉडर्न हिस्ट्री से अभी वेटेज कम हो गया है, लेकिन मैं उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री अटेम्प्ट करता था। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, लेकिन तब भी मैं कम करता था उसको, बाद में करता था, क्योंकि आई वाज नॉट सर्टेन अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम ज्योग्राफी। तो पॉलिटी इकोनॉमी हेल्प मी कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ भी है तो टेम्परामेंट अच्छा हो जाता था लौट के आने तक उस पार्ट तक। तो सर दैट थिंग हेल्प्ड मी इन द प्रिलिम्स प्रिपरेशन। अच्छा, व्हाट आई वाज आस्किंग, हम प्रीलिम में आ गए, एक्चुअली आई वाज आस्किंग अबाउट आंसर राइटिंग। यस सर। तो आंसर राइटिंग कैसे मैनेज किया प्रीलिम्स बैठने से पहले? सर मैंने सर 2 टेस्ट सीरीज लिए। मैंने कोई टेस्ट सीरीज लिखा नहीं सर मेंस प्रीलिम्स क्लियर होने से पहले, लेकिन मैंने सर 2 टेस्ट सीरीज लिए। एक टेस्ट सीरीज से सर मैंने मॉडल आंसर पढ़े, केवल पढ़ा सर उससे, और दूसरे के सर मॉडल आंसर दूसरे के जो टेस्ट सीरीज है वो खुद पे ही घर पे ही सर कुछ सेक्शनल टेस्ट दिए मैंने। और जब सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद आई परचेज द टेस्ट सीरीज फ्रॉम 2 इंस्टीट्यूट, और सर वहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किए। सो आंसर राइटिंग इज मस्ट, यू हैव टू राइट आंसर्स। सर आई विल से इट इज नॉट to the answer writing only, but whatever you are reading, what you are like studying, you have to test that, be it in prelims or be it in mains, or be it like preparing an interview also. Yes, absolutely. Yes sir. right. अच्छा राजीव, tell me something like very clearly, like आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल था। जनरली हम बच्चों को देखते हैं ऐसे ऑप्शनल्स उठाते हैं ये मान के कि जीएस में अलाइनमेंट होगा तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल देखें तो जीएस पेपर 1 में भी ज्योग्राफी आता है। यस सर। तो आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल का नॉलेज आपके कितने काम आया नहीं आया, या आपने स्मार्टली दोनों को सेग्रीगेट किया, क्या कैसे उसको टैकल किया? सर ज्योग्राफी ऑप्शनल का फायदा ये रहता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होते हैं जो जीएस पार्ट है ज्योग्राफी का, लेकिन जो क्वेश्चन लिखने का जो सर तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यू कैन नॉट राइट इन ज्योग्राफिकल मैनर द वे वी राइट इन ऑप्शनल, द वोकैबुलरी चेंजेस। यस सर। तो उसके लिए सर मैंने ये किया कि ऋषिकेश रेड्डी सर के मैंने कुछ नोट्स थे, वो इंडस्ट्रियल लोकेशन या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को मैंने वहाँ से यूज किया। उसके बाद में सर मैंने जो इंडस्ट्रीज नहीं थी कवर PYQ से उनको कवर कर लिया। न्यूज में जो आती थी सर, फॉर एग्जांपल दिस ईयर आई विल बी एडिंग सेमीकंडक्टर इन इंडिया और द वर्ल्ड, जो भी उसका है पार्ट्स है सर, लिथियम वगैरह, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आई यूज टू ऐड दैट इन माई नोट्स। अच्छा। उसके अलावा सर ज्योग्राफी में सर क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं जनरली, तो मैंने सर उसके लिए सारे PYQs के शॉर्ट नोट्स बना लिए फॉर लास्ट 10 ईयर्स। एंड सर वन मोर थिंग कि ज्योग्राफी में सर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कि क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है किसी चीज़ को, या फिर रॉक्स किसी पर्टिकुलर एरिया की कैसे करती हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं आंसर। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्वेश्चन इन रबर प्रोडक्शन एरियाज, तो आई डिड नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट आंसर, बट आई नो कि सर इक्वेटर के आसपास होता है ना, अपने यहाँ भी वही होता है सर। तो आई हैव टू जस्ट मेक अ मैप and I have to point some prominent areas around the equator. Around the equator. है ना, तो with the same kind of climate which we are having in the like in India. Yes. जहाँ इंडिया में केरला में हो रहा है, मालाबार एरिया में या और कहीं भी, उसी टाइप का क्लाइमेट हमको वर्ल्ड में देख लेना है, वही गोले पिन पॉइंट कर देना है सर। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी आई सर हेल्प मी। एंड वन मोर थिंग सर आई हैव डन इन माई लास्ट 2 attempts. I could not clear sir my first mains in 2021 by 1 mark. So what I did sir, I reversed my preparation strategy. For example, first I used to study the topic wise in GS paper. Like for example GS1, if the first topic is from ancient history, I'll read that. But after that what I did, I segregated the topics by the number of marks they are asking. For example, they are asking geography for 100 marks, society for 75-80 marks. So it is 180 marks paper, and it requires less reading than entire history. Entire history taken together. Yes sir. And there is certainty of also the question. If you are preparing these topics, you may like may attempt the questions in a well compared to that geography that history questions sir. Yes. So it helped me a lot. And similar kind of things sir I did, like I focused on
ethics paper also. I have not cleared more than 100 marks, but I was able to write those papers with minimal efforts, with minimal notes. That worked in favor of me. Acha, let's talk a little about the other part that generally is not seen, which is the failure and success part. So as I said, 2 prelims नहीं हुए, फिर एक मेंस नहीं हुआ, फिर IRS आता है, फिर IPS. So how did you manage yourself through that preparation of that 5 back-to-back years, so to say? सर मैं ये कहूँगा कि सर मुझे सेल्फ बिलीव बहुत था खुद पे. जब भी मैं फेल होता था तो बहुत डिप्रेसिंग होता था कि आई पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मेरा जॉब के साथ में कर रहा था तो देयर वाज नो सोशल लाइफ एट ऑल. तो वो बहुत मिनिमल होता था कि सर जो छुट्टियां मिल रही हैं वो केवल एग्जाम लिखने में जा रहे हैं. इवन एक्चुअल एग्जाम्स लिखने के लिए भी 12 डेज की छुट्टियां चाहिए और भी सर टेस्ट लिखने के लिए चाहिए. तो सर वो बड़ा टोल लेने वाला था. लेकिन सर मेरे को पता था कि सेल्फ बिलीफ था कि मैं सर अब कहीं कमी कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी में, अपने लाइक प्रैक्टिस में मैं उतना पुट इन नहीं कर रहा हूँ, या मैं टाइम भी दे रहा हूँ लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. फॉर एग्जांपल मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में सर टेस्ट नहीं दिए, 3rd मेंस में भी टेस्ट बहुत कम लिखे. तो आई इम्प्रूव्ड ओवर दैट सर. आई आइडेंटिफाइड माई वीकनेसेज व्हिच आई वाज डूइंग इन माई अर्लियर अटेम्प्ट्स एंड दैट हैज वर्कड मी कंसिस्टेंटली सर. सो इट इज एवरी टाइम लाइक पीछे देखना है क्या हुआ है, कहाँ गलत हुए तो आगे वाला एक स्टेप. सर आई डिड नॉट ब्लेम एनीबॉडी. आई ब्लेम्ड माई सेल्फ कि मैंने गलत तरीके से पढ़ा या कम पढ़ा. तो इट वॉज इन माई फेवर. एंड सर फैमिली सपोर्ट वॉज ऑल्सो देयर. आई एम मैरिड पर्सन, so my family, my parents, even friends sir were also there. They have also supported me every time I was like in like. See, anyways, this success is not a success of a single person. Yes sir. There has to be a great amount of a support system behind us. Yes sir. Great. Acha, just tell me one last thing. Like, did you ever thought of like quitting? कि हो गया अभी 5 साल छोड़ देते हैं, निकलते हैं. सर ऐसा नहीं हुआ. उसके 1-2 रीजन हैं कि सर मैं एग्जाम प्रीलिम्स के बाद लगा सर मुझे कि जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, स्टेट में हो गया, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्जाम like with greater zeal than UPSC. But in my 3rd attempt when I cleared prelims, then I got to know that I can do this exam, and it will take time, but I can do that. And with reoriented strategy, I was able to make it into the list sir last year. And after that I was like, I can do that. I can do anything. I can do better than this. Yes. Great. Just tell me something quickly, the last one. So now you are looking at the people who are preparing for the exam. Prelims is becoming difficult day by day. Yes sir. N number of resources floating all around. हर तरफ resources ही resources हैं. Yes sir. N number of people talking about N number of things. ऐसे prepare करें, वैसे prepare करें. Yes sir. So if you have to guide someone, let's say I have done it, let me guide you. Yes sir. What are the things that you will tell someone, let's do this, let's not do this? So some do's and some don'ts. सर 2-3 चीज़ें जो मैं बहुत प्राइमरी समझता हूँ. पहला सर आप अपना सिलेबस ले लें, आपने ऑप्शनल जो भी डिसाइड किया है और जीएस का, ट्राई टू मग अप दैट सिलेबस इटसेल्फ फॉर जीएस एटलीस्ट. उसके बाद में सर आप PYQ ले लें टॉपिक वाइज. सॉल्व ले सकते हैं, सॉल्व ले लें, अनसॉल्व ले सकते हैं, अनसॉल्व ले लें, दोनों ले लें. उसके बाद सर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सब मार्केट में सब लोग सेम पढ़ रहे हैं, आपके कोचिंग के नोट्स हैं, उनको एक ही प्लेस पर तैयारी करके, जैसे मैंने पहले भी बोला सर, मेक दैट PYQ योर गाइडिंग लाइट इन दिस प्रिपरेशन और लाइक नोट्स मेकिंग एनीथिंग एल्स. और सर दूसरा ये है कि मैंने क्योंकि मैं वर्किंग कैंडिडेट था, तो मैंने सर फोकस किया 80% जो मैनेजेबल चीज़ें थी. जो मुझे लगता था कि थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं उसको, और जो मेरा ज़्यादा टाइम लेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करता था. फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर माई फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स मुझे था कि मैं एंशिएंट मेडिवल कम याद कर पाता हूँ. तो आई वाज लाइक कि सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए. उसके बाद मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था, छोड़ देता था. मॉडर्न हिस्ट्री सर मैं करता था अच्छे से क्योंकि इट वाज डूएबल फॉर मी. आई वाज एबल टू मग अप दैट. बट एंशिएंट और मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था. दैट स्टडीज विल नॉट वर्क दिस ईयर बिकॉज लास्ट ईयर सर आर्ट एंड कल्चर वगैरह वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, मॉडर्न हिस्ट्री कम था, वो भी स्पेक्ट्रम वगैरह से कम था. तो दैट विल नॉट वर्क. बट यू विल हैव टू लाइक कम टू सम सर्टेन पॉइंट. यू कैन नॉट बी आइडियलिस्टिक एंड लाइक परफेक्शनिस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन. So try to maximize from the limited inputs you are putting in. Yes. And rather than covering everything, try to cover limited things like with better revision, better more number of tests, etc. That work for me, sir. मतलब पढ़िए, concentrate कीजिए और खुद को टेस्ट करिए. सर
Right. और एक समय के बाद सर आपको नोट्स दूसरी जगह से पढ़ने के बजाय आप जितना भी नोट्स है आप एक बार कंसोलिडेट कर चुके हैं ये सब क्लास करने के बाद में, तो आप टेस्ट दीजिए और कुछ आ नहीं रहा है तो उस टेस्ट पेपर से ही दोबारा लिख लीजिए वहाँ पे। फिर अदर सोर्सेज आप मत जाइए एक टाइम के बाद। हाँ, ये जो बहुत रिसोर्सेज हम चले जाते हैं वो दिक्कत करता है। आप क्योंकि यूपीएससी का नेचर ऐसा है कि यू वोंट बी गेटिंग एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द योर नोट्स इटसेल्फ, चाहे कितना भी लिख लो, कहीं से भी लिख लो। तो अगर आप टेस्ट लिख रहे हैं तो योर माइंड विल बी लाइक ट्रेन्ड for doing any kind of question. You'll be at least writing a decent average answer for even the questions which are difficult. Points. Yes, generic points at least. And sir, one more thing is there for mains. Try to find some generic points for everything. For example, in geography, in industry location, 5 points are always similar: labor, productivity, government support, and 1-2 points are very specific to that industry. Try to write those specific points in at your first and second point. After that, write वो, and you will save your time क्योंकि आपके पास पहले से ही फ्रेमवर्क है कि आपको 5 पॉइंट यही लिखने हैं। सेम सर हम यही इसमें करते हैं। बॉडीज डिजास्टर्स आर देयर इन पेपर 3, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन सर फिक्स्ड है, उसका फॉर्मेट फिक्स्ड है। आप 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स पहले डाल के बाकी सब वैसे डाल सकते हैं। राइट, सो यू सेव टाइम सो दैट जहां पे कुछ नहीं आ रहा है वो आपको पहले से है तो आप कैन पुट इन टाइम। यस सर, राइट। इट विल और सोचने में टाइम जा रहा है सर वो बचेगा। ग्रेट। और अल्टीमेटली आप सोच के करिए चाहे नहीं करिए, आप जेनरिक पॉइंट लिखेंगे ही। आई थिंक मोर देन हाफ पॉइंट्स विल बी जेनरिक पॉइंट्स, है ना, फॉर एवरी। एक्चुअली देयर कैन नॉट बी इंडेफिनिट स्पेसिफिक पॉइंट्स सर फॉर एनी टॉपिक। यस, प्लस एट द सेम टाइम नॉट एवरीवन इज हैविंग द एक्सपर्टाइज इक्वली। और सर एंड दैट एग्जाम प्रेशर, यू हैव लिमिटेड टाइम, यू आर नॉट एबल टू थिंक परफेक्टली फॉर लाइक यू हैव रेड एवरीथिंग। सो यू हैव टू कम टू द लाइक मिनिमम टाइम में करना है। एंड आई थिंक बाकी डायग्राम वगैरह वो सब बताते ही हैं तो दैट हेल्प्स। वो तो हो जाएगा। यस सर, ग्रेट राजीव। आई थिंक वी हैव एड्रेस्ड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस to many of the students, which will help them definitely. We'll be coming back to you again and again for your guidance. Thank you very much for your time and congratulations again. Thank you, sir. For the great achievement you had. Thank you, sir. Thank you, Rajiv. Thank you.